Hello everyone, so this is going to be the Python 9 of our lecture 9 for our Python series. I feel that you are enjoying the lectures. If you have any notes, do let me in the comment section. So let's get started. We're going to talk about files and exceptions today. What is files and what to read in that part is reading and writing files, working with directions, pickling objects, and handling errors gracefully. That's only the concept of file handling. Apart from that, we'll also read some text topics, that is text files, directories, pickling, try except else, zero division error, file not found error. Right, let's move. So what we are going to cover today is file handling basics, writing and reading. Then we'll talk about directories, pickling, exceptions and practice. All the coding questions. What is file handling basic comprises of? It comprises of opening files, modes, and the with statement. What is writing and reading? It is about writing variables, data to files and reading them back. What is directory? It is creating, listing and navigating folders with OS. What is pickling? Saving and loading Python objects in binary form. What is exception? Zero division error, type except else, try except and else, and file not found error. And then a few coding questions. Let's talk about file handling basic. It's all about opening, writing and reading text files in Python. So basically, what is a file? A file is a precedent storage. Variables disappear once a program ends. Files let data survive after the program crosses a disk. Text file .txt.csv.py store human readable characters open in text mode. Talk about binary files .jpg.pkl.ec store data as raw bits opened in binary mode used for images, pickled objects, etc. Python's built-in open function, the gateway to all file operation used for both reading and writing on text and binary files. Let's talk about the open function on the file modes. File object equals to open, then we put the file name and then the mode. Talk about read default opens for reading error if file doesn't exist. Then write creates a new file, overwrites, erases an existing ones. Then we talk about append when we have to add a new content to the end of the file keeping old content. Talk about create a file fails with error if already exists. And then talk about read and write opens for both reading and writing, no truncation. Then talk about binary combined with above RB and W, that is writing and reading for no text files. Let's talk about writing to a file. When you have to write to a file, we open, then we write and then we close. This is the format of writing, and then you firstly have to open it, then you have to write and then you have to close. Let's talk about writing variables. This is how you define variables, and then with the help of open, you open it and then you write it for the output and you write print later. So this is how it process. Then talk about the with statement. Manual close is easy to forget. If an error occurs when file close, the file may stay locked or data may not be saved. So sometimes in the with statement, lock can happen due to this manual error. With open, as if handles it automatically, the file is closed automatically once the indented block finishes, even if an exception occurs in it. Recommended for every file operation. With open.txt rsf content f.read file is already saved here. Reading from file. How to read from file? You have to just write the name and f dot read to read the whole file. This is how you read and you get the output. Now talking about
what will happen when this code runs assuming log.test does not existed? So basically see, if you run it, it creates log.txt and writes the file into it. Both A and W modes create the file automatically. It does not already exist. If you put append or write and the file is not actually existing, it will create on its own. And when you place read to it, it will make you file not found error on the missing file. Talking about working with directories, creating, listing and navigating folders using the OS module. Directories in Python, import OS, Python printed OS module, lets a module interact with the programming system. os.getCD returns the current working directory, the folder your script running from. os.mkdir creates a new single directory. os.mkdir creates a nested directories in one call, right? os.listdr path returns a list of all files and folders inside the given directly. os.remove, os.undo delete a file. This is how a file is deleted or an empty directory. Creating and listing directories. So this is the syntax with how you create directories and how you list it. And talking about this practice question, which function should you use to create a folder name reports together with a missing parent folder? So this is how it is created. So या nested function calls हो, जैसे यहाँ पर हमने एक वैल्यू ली है, ये इनपुट भी हो सकता था 3.75, एक फ्लोट वैल्यू है, तो हमने लिखा है प्रिंट str राउंड वैल्यू, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? यू आर गेटिंग माई पॉइंट. और उसके बाद हमने प्रिंट टाइप str राउंड वैल्यू, इसमें हमें क्या आएगा? इसमें हमें डेटा टाइप मिलेगा. जब ये चेंज हो जाएगा ना, फिर उसका डेटा टाइप हमें मिलेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि राउंड बेसिकली क्या होता है? राउंड आपको ऊपर की तरफ लेके जाता है, जो हाईएस्ट इंटीजर पड़े उसकी तरफ वो हमें राउंड देता है. तो यहाँ पर 3.75 का जो हाईएस्ट इंटीजर है वो 4 है, तो 4 की तरफ जाएगा. उसके बाद हमने टाइप फाइंड किया तो हमें str मिलेगा, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू पे प्रिंट कराया हमने उसे. उसके बाद टेक्स्ट पाइथन 3 है हमारे पास. उसके बाद हमें करना है प्रिंट लेंथ ऑफ टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप. स्ट्रिप का मतलब क्या होता है? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच आई विल टेल यू व्हेन आई विल कोड, बट बाय देन देखो, PYTHON 6, ठीक है, 6 लेटर्स का हमारा वर्ड है. 3, 7 और जो स्पेस है 8, यू आर गेटिंग इट. तो 8 डिजिट 8 तुम्हारा इसकी लेंथ हो जाएगी पाइथन स्पेस 3 की, ठीक है, जब हम लेंथ प्रिंट कराएंगे. टाइप कन्वर्जन की बात करते हैं. आई टोल्ड यू अबाउट इम्प्लिसिट काइंड ऑफ कन्वर्जन. अभी एक्सप्लिसिट चेंज ऑफ टाइप जो हम है ना, एक्सप्लिसिटली भी चेंज कर सकते हैं. जैसे टाइप कन्वर्जन और कास्टिंग. टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग मीन्स deliberately changing a value from one type to another, ठीक है. Python gives us function for int, float, str, boolean, list and more. This is called explicit conversion. You, the programmer, are asking for it. You are responsible for changing it according to your use. Very common when working with input, since input always returns a string value by default. Got it? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हम मेजरली तब करते हैं जब हम इनपुट लेते हैं, क्योंकि अगर हम इनपुट के पहले अपना डेटा टाइप नहीं बताएंगे ना, तो हमेशा स्ट्रिंग में आ जाएगी वैल्यू, विच इज़ नॉट दैट इफेक्टिव फॉर एवरी ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है. अभी देखो, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में हमने एक एज लिया है, इसमें हमने इनपुट लिया है. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? उसके बाद हम टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं. उसको एक साथ ही लिख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है प्रीवियस वीडियो में. प्राइस को हम वैसे ही कर रहे हैं, फिर हम लेबल करके उसको str पे सेट कर रहे हैं. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. उसके बाद हम टाइप निकालना चाह रहे हैं कि उनका टाइप कौन सा है. सो दीज आर ऑल विच वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस वीडियोज़, द वेरी फर्स्ट वीडियो आई फील. बट ये हम वापस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस, राइट. चलो टाइप करेक्शन देखते हैं. पाइथन्स ऑटोमेटिक कन्वर्शन. पाइथन कभी कभी खुद से कन्वर्ट करता है. जैसे हम स्पेसिफिकली जब कोई इंट और फ्लोट वैल्यू ऐड करते हैं ना, तो आउटपुट खुद ही फ्लोट आ जाती है. अगर हम किसी बूलियन प्लस इंटीजर को याद करते हैं ऐड, तो 1 इक्वल्स टू खुद को ही ट्रू लेता है, तो 2 और वो इंटीजर वैल्यू आ जाती है. 1 को वो 0 1 के फॉर्मेट में 1 ले लेता है और वैल्यू आ जाती है.
अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं किसी इंट और फ्लोट नंबर का तो हमेशा फ्लोट आता है. अगर हम किसी स्ट्रिंग को ऐड करना चाहते हैं किसी नंबर से, इंटीजर हो या फ्लोट, तो उसमें एक टाइप एरर आपका आता है, बिकॉज स्ट्रिंग और इंटीजर या फ्लोट वैल्यू खुद ब खुद ऐड नहीं करना होता है, उसमें हमें एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन चाहिए होता है. टाइप कोरेशन इज व्हेन पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स अ type for you without being asked. It happens in mixed type expression, for example, an int combined with float. Python promotes the line, the less precise type to the more precise one. जैसे int को float में convert करना. Correlation does not happen between numbers and strings. That raises a type error. I told you. चलो implicit conversion versus explicit conversion की बात करते हैं. बात क्या करनी है इसमें, हम डायरेक्टली कोड करके देखेंगे कि कैसे वर्क करता है. आई टोल्ड यू जब हमें एस टी आर वाला पार्ट करना होता है ना, तब हमें एस टी आर कर देना होता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, तब वहाँ पे कंसेप्ट आता है हमारा एक्सप्लिसिट कन्वर्शन का. नहीं तो जब तक इंट और फ्लोट में चल रही है वैल्यू तो इट्स वेरी इजी टू डू. चलो कॉमन कन्वर्जन एरर्स. नॉट एवरी स्ट्रिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंट. ठीक है, रेजर्स अ वैल्यू एरर आने के चांसेस. जब हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे ना तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी पढ़ने वाले हैं. जैसे फ्लोट के बारे में बात करते हैं. फ्लोट एक्सेप्ट डेसिमल लुकिंग स्ट्रिंग्स बट इन डज नॉट एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग विथ अ डेसिमल पॉइंट डायरेक्टली. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. अभी कैसे कोई स्ट्रिंग है उसमें ऑलरेडी ये पॉइंट्स है तो उसको वो डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट करने में दिक्कत करेगा. ऑलवेज वैलिडेट इनपुट बिफोर कन्वर्टिंग. ऑलवेज वैलिडेट इनपुट बिफोर कन्वर्टिंग और यूज़ ट्राई और एक्सेप्ट टू कैच बैड इनपुट ग्रेसफुली. हम जब फाइल हैंडलिंग में ट्राई और एक्सेप्ट जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें हम ज़ीरो डिविजन एरर, वैल्यू एरर, इस टाइप की चीज़ें पढ़ेंगे, और कई बार कंसेप्ट सही लगाने पे भी एरर आता है, तो हाउ टू नॉट गेट दैट एरर उसको हम बेसिकली यहाँ पर समझेंगे. चलो मैथ्स फंक्शंस पे बात करते हैं. मैथ फंक्शन जो है बिल्ट इन है और वो मैथ मॉड्यूल भी है हमारे पास. मैथ मॉड्यूल भी एक हमारे पास एक पीस ऑफ थिंग है और एक मैथ फंक्शन भी है. लेट्स टॉक अबाउट इट. बिल्ट इन मैथ हेल्पर्स, नो इम्पोर्ट नीडेड. ऑलरेडी चीज़ें हैं हमारे पास, हमें कोई एक्सटर्नल इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे पाइथन इंक्लूड सेवरल न्यूमेरिक फंक्शंस अवेलेबल इमीडिएटली विथ नो इम्पोर्ट रिक्वायर्ड एक्चुअली. जैसे हम ABS यानी कि एब्सोल्यूट अगर हम करते हैं, ABS का मतलब एब्सोल्यूट होता है और उसमें हम कोई भी नंबर डालते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसमें हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, जैसे ये यहाँ पर हमें मिला हुआ. ठीक है, जैसे हम राउंड करते हैं x और n राउंड्स टू n डेसिमल नंबर. हम कोई एक नंबर यहाँ पर पुट करते हैं और हमें कितने डिजिट पे उसे राउंड ऑफ करना है हम उतना नंबर वहाँ पे पुट करते हैं, तो हमें ईजिली चीज़ें मिल जाती हैं. अब बात करते हैं हम मिनिमम, मैक्सिमम, सम, पावर, बेसिस. इसको हम कैसे यूज़ करते हैं. अब जैसे पावर है तो हमें जिस पे पावर करना है, फर्स्ट नंबर जो है वो बेस नंबर है और जो सेकंड नंबर है वो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है, तो 2 to the power 10 यहाँ पर हो जाएगा. सम अगर हमें करना है तो ये तीनों को ऐसे कॉमा डाल के कर देंगे, ईजिली सम हो जाएगा. अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें मिन करके अपना एक लिस्ट प्रोवाइड करना है. मैक्स निकालनी है, मैक्स प्रोवाइड करके एक लिस्ट प्रोवाइड कर देनी है. तो ऐसे हम बहुत ईजिली ये चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी इम्पोर्टिंग, विदाउट एनी यूज़ ऑफ इम्पोर्ट. चलो यहाँ पर हम कोड करके देख रहे हैं कि कैसे करना है. सेम बात है, हमें इसे VS कोड में भी कोड करना है. चलो मैथ मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं. फॉर मोर एडवांस ऑपरेशन पाइथन प्रोवाइड्स द मैथ मॉड्यूल इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जिसको हम ईजिली इम्पोर्ट मैथ करके यूज़ कर सकते हैं. इम्पोर्ट मैथ के अंदर हमें मिलता है बेसिकली फंक्शंस लाइक स्क्वायर रूट, सील, फ्लोर, फैक्टोरियल, लॉग एंड कॉन्स्टेंट लाइक पाई एंड ई. कॉल एनी ऑफ देम यूजिंग डॉट नोटेशन, जैसे मैथ डॉट स्क्वायर रूट और उसमें वैल्यू पुट किया, मैथ डॉट पाई उसमें मैथ डॉट फैक्टोरियल उसमें वैल्यू पुट किया, तो ईजिली. चलो हम इससे बेसिकली हम इससे VS कोड में समझेंगे. बाय नाउ ये समझो कि किसका क्या काम होता है. ठीक है, अगर हम स्क्वायर रूट लगाते हैं और हम वहाँ पे 16 लिखते हैं ना तो हमें 4 वैल्यू मिल जाएगी, मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा. अगर हमें पावर निकालना है तो हमारी फर्स्ट डिजिट x होगी और y वाली जो डिजिट होगी, जो सेकंड डिजिट होगी वो पावर वाली होगी. उसके बाद हम मैथ डॉट सील यूज़ करेंगे, तो जो नियरेस्ट इंटीजर ऊपर की तरफ होता है उसको मार्क करेगा. और जब मैथ डॉट फ्लोर यूज़ करेंगे तो जैसे
नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ वाली इंटीजर को नहीं पकड़ेगा, नीचे की तरफ पे राउंड ऑफ करेगा। मैथ डॉट फैक्टोरियल में राउंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स निकालेगा, जो भी तुम नंबर पुट करो 1 से लेके n तक का, ठीक है। मैथ डॉट GCD ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे HCF की बात हो रही है, तुम नंबर प्रोवाइड करो, आपको डायरेक्टली GCD मिल जाएगा। उसके बाद मैथ डॉट लॉग जो है हमें नेचुरल लॉगरिदम ऑफ x बताता है और उसकी वैल्यू हमें ईजिली निकाल के देता है, जो हमें खुद से करने में काफ़ी टाइम लगेगा। मैथमेटिकल कॉस्ट जैसे मैथ डॉट पाई, मैथ डॉट ई, इसकी वैल्यूज़ बहुत ईजिली प्रोवाइड कराता है हमें मैथ मॉड्यूल। चलो अभी हम मैथ मॉड्यूल को भी यूज़ करके देखेंगे 1 बाय 1। अभी हम थ्योरी पार्ट पहले कवर कर रहे हैं। मैथ फंक्शन इन रियल फॉर्मूला। चलो देखो, पहले हमने क्या किया कि हमने इंपोर्ट कराया मैथ्स को, ठीक है। उसके बाद हमने रेडियस लिया 7। अभी जैसे हमें क्या करना है कि हमें करना है, फॉर एन एग्जाम्पल, हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है 2 पाई आर। तो हमें वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने मैथ्स इंपोर्ट किया, हमने एरिया लिखा और हम डायरेक्टली कर रहे हैं मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाइड बाई मैथ डॉट पाओ, और उसके बाद हमने रेडियस डाला और 2 लिख दिया। अब रेडियस की वैल्यू ऊपर 7 दी हुई है, वो खुद से एक्सट्रैक्ट कर लेगा उसको। सेम गोज़ फॉर सर्कमफ्रेंस। उसके बाद हमने कहाँ तक की वैल्यू राउंड ऑफ करनी है, राउंड किया, उसमें हमने एरिया लिखा, 2 लिखा, 2 तक की डेसिमल वैल्यू लेंगे, हमने दोनों को प्रिंट कराया और हमारे पास आंसर आ गया। सो हियर यू कुड हैव अंडरस्टैंड, ये सेम क्वेश्चन हमने पहले या सेकंड दिन किया था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, और उसमें हमने पाई की वैल्यू लिखी थी, मल्टीप्लाई की थी। सो हियर फ्रॉम दिस यू अंडरस्टैंड, यू कैन गेट on to the answer or the question with different methods in Python. You have a lot of methods to perform one single question, and that's the speciality of how you learn to code. ठीक है, चलो, adding new functions, from using functions to writing your own. Here comes your journey. हम तब तक functions यूज़ कर रहे थे जो functions हमें already provided थे, अब हम अपने काम के लिए खुद से functions create करने वाले हैं। बेसिकली वाई राइट योर ओन फंक्शन, मैंने ये सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि हमें खुद से फंक्शंस लिखने की ज़रूरत क्या है। सो फार वी हैव ओनली कॉल्ड फंक्शन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, नाउ वी डिफाइन न्यू वंस। अ फंक्शन पैकेजेस अ पीस ऑफ लॉजिक अंडर अ नेम सो दैट इट कैन बी रीयूज्ड विदाउट रिपीटिंग कोड। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, हमें कुछ खुद से क्रिएट करना है और हम उसमें कोई एक अलग आइडिया डालना चाह रहे हैं फंक्शन में, जो शायद हमें ऑलरेडी पाइथन ने नहीं प्रोवाइड किया हुआ है। सो हम इसे खुद से क्रिएट कर सकते हैं, और एवरी टाइम वी वांट टू run that or reuse it, we can do it. We don't need to type that similar code every time we want to do that task. Got it? This connects directly to generalization from day 3, one function, many inputs. I told you I was talking about encapsulation and generalization in lecture 3. उसमें मैंने आपको बताया था कि generalization एक की factor है in an coder's life where he tries to make the codes very easy and very short actually, क्योंकि हम जितना लंबा अगर हम कोड बहुत लंबा लिखते हैं, बहुत मैसी सा लिखते हैं, दैट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड आफ्टर यूजिंग इट वंस. सो द easier the code is, the good coder you are actually. Okay, functions make program easier to read, text and fix. जितना छोटा कोड होगा वो easily readable होगा, testable होगा और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आराम से होएगी और फिक्स करना उसे उतना ही ईजी होगा. तो बेसिकली लेट मी जस्ट रैप दिस कि पाइथन में फंक्शंस या फिर कहीं भी फंक्शंस किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रेपिटेशन ऑफ सेम कोड को अवॉइड करता है, ईजियर करता है टेस्ट को, उसके बाद कॉम्प्लेक्स लॉजिक को एक क्लियर आइडिया या फ्रेमवर्क देता है और थ्रू आउट द प्रोजेक्ट तुम उसे अलग अलग बार रीयूज़ कर सकते हो. तुम्हें वापस उस ब्लॉक ऑफ कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है. चलो, एनाटॉमी ऑफ अ फंक्शन डेफिनेशन. जैसे अभी हमें कोई फंक्शंस क्रिएट करना है तो हम उससे कैसे क्रिएट कर सकते हैं. हमें जैसे कोई फंक्शन क्रिएट करना है तो हम डेफ लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और अंदर हम पैरामीटर पास करने के लिए एक वेरिएबल जैसा कुछ बना देंगे. जैसे डेफ एक कीवर्ड है जो पाइथन को बताता है कि तुम एक नया फंक्शन बनाने लगे हो. ठीक है, डेफ कीवर्ड से पाइथन समझ जाएगा कि तुम एक नया फंक्शन बना रहे हो.
उसके बाद तुमने फंक्शन, उसके बाद जो तुम नाम दोगे वो आपका फंक्शन का नाम होगा, जिसको तुम थ्रू आउट द ब्लॉक ऑफ कोड यूज़ कर पाओगे। उसके बाद अंदर तुमने पैरामीटर डाले हैं जो प्लेस होल्डर है डिफरेंट वेरिएबल्स के, जो तुम थ्रू आउट अलग अलग, वो पैरामीटर की जगह पे कोई भी वेरिएबल थ्रू आउट पुट हो सकता है, ठीक है। द इंडेंटेड ब्लॉक बिलो डेफ इज़ द फंक्शंस बॉडी। अब जो हम डिफरेंट इंडेंटेड बॉडी करेंगे, जैसे प्रिंट हो गया या इफ एल्स का कंडीशन कुछ पुट किया कि अगर ऐसा कुछ है तो ये प्रिंट होगा, अगर वैसा कुछ है तो वैसा होगा, तो ये बेसिकली पूरा फंक्शन का बॉडी है। अ रिटर्न स्टेटमेंट सेंड्स अ वैल्यू बैक टू द कॉलर, विदाउट इट द फंक्शन रिटर्न्स नन। ओके, एक बारी वापस ये कॉलर के पास जाएगा, जब हम रन करेंगे तो ये बेहतर समझ में आएगा। तो फॉर नाउ अंडरस्टैंड कि हम फंक्शंस लिखते कैसे हैं, ठीक है। चलो एक सिंपल फंक्शन का हम देखते हैं कि कैसे लिखा है हमने इसको। बेसिकली वी हैव रिटन def, then the name of the function, and then we have written print welcome to day 4, print let's learn functions। उसके बाद हमने क्या किया, ये हमने एक बारी लिख दिया। अब हम कहीं भी थ्रू आउट अगर लिखेंगे शो वेलकम और हम ब्रैकेट लिखेंगे तो वो खुद ब खुद प्रिंट हो जाएगा। जहाँ भी लिखेंगे हमें बार बार प्रिंट वेलकम टू डे 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। चलो, अ फंक्शन विथ पैरामीटर्स एंड रिटर्न। पैरामीटर्स क्या है, पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिया, पैरामीटर्स एक प्लेस होल्डर है जहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, जैसे हमने एक फंक्शन बनाया स्क्वायर नाम का, उसके अंदर हमने एन पुट किया, ठीक है। एन एक प्लेस होल्डर है। अब ये स्क्वायर कोई भी नंबर का हो सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर का हो सकता है। अब बात ये समझेंगे कि अगर हमने अंदर 2 लिख दिया तो इसमें रिटर्न क्या होना चाहिए, इसमें रिटर्न होना चाहिए n टू द पावर 2 स्क्वायर करने के लिए। और उसके बाद अगर हमें ऐड करना था a और b नंबर को तो हमने रिटर्न a प्लस b सेट कर दिया। तो डिफरेंट तरीके से हम रिटर्न सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट स्क्वायर, हमने प्रिंट लिखना है अगर हमें प्रिंट कराना है, नहीं तो हम डायरेक्ट स्क्वायर लिखेंगे और अंदर वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद हम ऐड लिखेंगे और डायरेक्टली 2 वैल्यू पुट करेंगे, 2 3 4 5 ऐसे हम पुट करेंगे और हमें डायरेक्ट आउटपुट मिलेगा, बस हमें उसे प्रिंट कराना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमें ऐड करना है, हमारा मन है कि हम कुछ कॉम्प्लेक्स सा करें, तो हमें स्क्वायर ऑफ 3 और स्क्वायर ऑफ 4 को ऐड करना है। तो हमने क्या किया, ऐड फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर हमने स्क्वायर फंक्शन को 2 बार कॉल किया है और n की वैल्यू उसके प्लेस होल्डर में डाली है। चलो, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू समझते हैं। A parameter can have a default value used when the caller doesn't supply one, ठीक है। पैरामीटर पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हो सकती है कि अगर कॉलर उसमें कोई वैल्यू नहीं डाल रहा है, द वन हु इज़ यूजिंग इट, वो उसमें कोई वैल्यू नहीं डाल रहा है, तो भी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ तो होगा। जैसे हमने सिंटेक्स पे सेट किया है डिफाइन ग्रीट नेम, उसके बाद ग्रीटिंग हेलो आएगा। Default makes function flexible, simple calls stay simple, but customization is still possible. Parameter with defaults must come after parameters without defaults. This is very complex to understand. So basically यहाँ पर हमें चाहिए greet अमित for an example. तो हमने इसमें default greeting set कर दी है कि greet hi आएगा, overrides the default. इसमें क्या होता है ना कि लेट मी जस्ट लीव दिस फॉर यू, इसको हम VS कोड में समझते हैं, क्योंकि जब तक हम इसे रन नहीं करेंगे ना, यू विल गेट कन्फ्यूज इन दोज वर्ड्स ऑफ ओवरराइड्स, डिफ़ॉल्ट, क्रिएशन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो लेट इट बी, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़ को रहने देते हैं, इसको हम डायरेक्टली VS कोड पे समझेंगे। चलो, लेट्स टॉक अबाउट डिफ़ॉल्ट एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने क्रिएट कर लिया है एक ग्रीट नाम का फंक्शन क्रिएट कर लिया, उसमें हमने नेम डाल दिया और हमने उसमें ग्रीटिंग बाय डिफ़ॉल्ट हेलो सेट कर दी है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, प्रिंट किया ग्रीटिंग और उसके बाद नाम प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे ग्रीट और हमने इसमें प्रिया नाम दे दिया और उसके बाद हमने ग्रीट राहुल गुड मॉर्निंग दे दिया, उसके बाद हमने ग्रीट ज़ारा ग्रीटिंग हे दे दिया। इसके वैल्यूज़ पे हम वैल्यूज़ पुट कर दे रहे हैं। तुम इस बात को समझ रहे हो, हमें नेम इनपुट देना है, बट अगर हम ग्रीटिंग भी इनपुट दे दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हमने ग्रीटिंग इनपुट नहीं दिया तो इसके फॉर्मेट पे ईजीली हेलो के साथ वो प्रिंट हो जाएगा। अगर कोई बंदा इनपुट नहीं दे रहा है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को कैच करेगा, नहीं तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है अपने पास, सिंपल एज दैट।
Variable scope, local versus global. A variable created inside a function is actually local. It only exists जब तक हमारे पास function है. And the global one is visible everywhere in the file. जब तक वो file है वो कहीं भी use हो सकता है global variable. A function can read a global variable but needs the global variable keyword to modify it. तुम्हारा फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल को रीड कर सकता है, लेकिन अगर उसको मॉडिफिकेशन चाहिए तो उसको मॉडिफाई करने के लिए हम एक डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई करेंगे जो हमें कोड करके देखना है. ठीक है. प्रेफर पासिंग वैल्यूज इन एज अ पैरामीटर एंड रिटर्निंग रिजल्ट्स रादर देन रिलाइंग ऑन ग्लोबल्स. ग्लोबल वेरिएबल की जगह रिटर्न स्टेटमेंट्स यूज़ करें बिकॉज इट इज़ ईजी एंड क्लियर टू यूज़. ठीक है. थंब रूल्स याद रखोगे कि ग्लोबल वेरिएबल डाई व्हेन द फंक्शन एंड्स, लोकल वेरिएबल सॉरी ग्लोबल वेरिएबल्स लिव फॉर द होल ऑफ द प्रोग्राम जब तक फाइल एग्जिस्ट करता है. और थर्ड, अवॉइड मॉडिफाइंग ग्लोबल्स इनसाइड फंक्शंस, क्योंकि जो ग्लोबल वेरिएबल है अगर तुम उसे इनसाइड फंक्शन मॉडिफाई करते हो ना तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है थ्रू आउट कोड, क्योंकि वो बाहर की वैल्यू अलग और अंदर की वैल्यू अलग चलती है. तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए व्हेन यू राइट लॉन्ग कोड्स. चलो लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल की बात करते हैं. देखो यहाँ पे जैसे काउंट हमने ना ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, एंड हमने इसे इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन बना दिया, उसमें हमने ग्लोबल काउंट को बुला लिया और हर बार जो है काउंट +1 हो रहा है. ठीक है. अब देखो हमने एक लोकल वेरिएबल बनाया और ये हमें कैसे पता चला कि लोकल वेरिएबल बना रहे हैं, क्योंकि हम उसका मैसेज जो है उसके नीचे डिफाइन कर रहे हैं और उसके बाद हम वहाँ प्रिंट मैसेज भी कर रहे हैं. तो जब हम इंक्रीमेंट को कॉल कर रहे हैं, 2 बारी कॉल कर रहे हैं और उसके बाद हम प्रिंट काउंट कर रहे हैं तो 2 आएगा प्रिंट. दिस इज़ डिफरेंट थिंग, बट मैं तुम्हें ये समझाना चाह रही हूँ कि जो ग्लोबल वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है वो फंक्शन के डिक्लेरेशन के ऊपर होता है और जो लोकल वेरिएबल का होता है वो फंक्शन के अंदर होता है. आउटपुट वाली चीज़ अभी कोड करके देखना और खुद आउटपुट देखो कि कैसे आ रहा है. ठीक है. अब हम पहुंच चुके हैं कोडिंग क्वेश्चंस पे. सो लेट्स स्विच टू VS कोड और हम पहले उधर के क्वेश्चंस करते हैं जो थ्रू आउट लेक्चर थे, उसके बाद यहाँ एडिशनल क्वेश्चंस पे आएंगे. लेट्स चलो तो विल डू द कोडिंग क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कॉलिंग बिल्ट इन फंक्शंस. ठीक है. कॉलिंग बिल्ट इन फंक्शंस. सो पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे कोई एक स्ट्रिंग है, जैसे मैं अपना नाम डालती हूँ स्ट्रिंग में शगुन. गॉट इट. इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें जैसे कोई बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास लेंथ है, जैसे हमें स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है, उसके लिए हम प्रिंट और नेम, इससे हमें क्या पता चलेगा. यहाँ पर हम बिल्ट इन फंक्शन लेंथ यूज़ कर रहे हैं और इससे हम स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करेंगे. रन करते हैं. 6. तो हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ आ गई. उसके अलावा एक बिल्ट इन फंक्शन है, लेट्स से हम एक लिस्ट बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं. ये एक सीक्वेंस क्रिएट कर लिया हमने. ठीक है. एक सीक्वेंस क्रिएट कर लिया हमने और इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर और नंबर्स का टाइप फाइंड करना है. ठीक है. तो चलो पहले करते हैं प्रिंट मैक्स फ्रॉम नंबर्स. ठीक है. फिर करते हैं प्रिंट मिनिमम फ्रॉम नंबर्स. राइट. इसके अलावा हम क्या करते हैं, हमें नंबर्स का अगर टाइप भी निकालना है तो हम क्या करते हैं, प्रिंट टाइप नंबर्स. टू गेट मोर क्लियरेंस अबाउट इट विल डू वन थिंग लेटर. पहले ये वाला पार्ट देखो. सी, हमने यहाँ पर सेट बनाया सी. ठीक है. मैक्सिमम नंबर 9 है और मिनिमम नंबर 1 है और ये बेसिकली हमने सेट बनाया, ये बहुत ईजिली हमें पता चल रहा है. इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं, हम इसमें फ्लोट वैल्यू डालते हैं, 9.3 कर देते हैं. उसके बाद देखते हैं आउटपुट क्या आता है. स्टिल हमारा सेट है और हमारा लार्जेस्ट नंबर जो है 9.3 है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेस्टिंग फंक्शन कॉल्स.
ठीक है, जैसे हम कोई एक फंक्शन कॉल करते हैं उसमें मल्टीपल प्रिंट्स कराते हैं, दैट इज़ नेस्टिंग। पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं। Let's talk about nesting function calls. Nesting function calls. वैल्यू वैल्यू हम इनपुट कराएंगे, एंटर अ वैल्यू। ठीक है, अब चलो एंटर अ वैल्यू। नाउ नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हम इसमें जो वैल्यू एंटर करते हैं उसे हमें 2 डिजिट तक राउंड करना है, और जैसे प्रिंट करना है हमें स्ट्रिंग वैल्यू को, और हमें राउंड करना है वैल्यू को। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें फिर टाइप फाइंड आउट करना है। प्रिंट टाइप str राउंड वैल्यू। ठीक है, चलो लेट्स रन एंड सी। जब हम इसे रन करेंगे ना तो हमें इनपुट देने को आएगा, तो हमें इनपुट एक वैल्यू देनी है जिसमें फ्लोट भी हो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे 8.99 एंटर कर दिया, तो इसमें हम पे एरर क्यों आ रहा है? इसमें हम पे एरर, I mentioned something wrong. ओके, क्योंकि यहाँ पर हमने इंटीजर वैल्यू ली है और हमने वैल्यू फ्लोट डाला है, इसीलिए एरर आ रहा है। चलो लेट्स डू इट अगेन। एंटर अ वैल्यू 3.99। अब देखते हैं। हाँ, तो प्रिंट str राउंड जब हम करते हैं ना तब हम नियरेस्ट इंटीजर की तरफ राउंड करते हैं, राइट। तो 3.99 का नियरेस्ट इंटीजर 4 है, तो उस पर राउंड कर दिया हमने। ठीक है, अब हमें अगर टाइप देखना है तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी हम नंबर का टाइप कन्वर्जन str पे कर रहे हैं, तो हमें str ही आएगा टाइप, राइट। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स कमेंट इट आउट फर्स्ट, उसके बाद हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन पे बात करते हैं। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन इज समथिंग पाइथन कन्वर्ट्स द डेटा टाइप ऑन इट्स ओन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। उसको हम इम्प्लिसिट करते हैं। द वन विच वी डू इज नोन एज एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन। चलो, तो फॉर एन इंस्टेंस जैसे हम एज लेते हैं यूज़र की, ठीक है, यूज़र की एज हमने इनपुट करवाई है, ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है, हमने इनपुट पे ही इंट करा लिया है, और हमने क्या करना है इसमें कि जैसे ये हमें पता है, तो देखो इस पे इम्प्लिसिट काइंड ऑफ फंक्शन यूज़ होगा। लेट्स रन इट फर्स्ट। अगर हम इस पे इंट नहीं लगाते, इसे टाइप कास्ट ना करते तो क्या होता? चलो, अगर हम इसे टाइप कास्ट ना करते खुद से तो क्या होता? तो भी एंटर एज हमारी 12 आ जाती बहुत इजीली। ठीक है, इसको हम प्रिंट कराते हैं एक बार। प्रिंट, ठीक है, एंटर एज, तो 13 आराम से आपकी एज आ रही है। व्हाट आई वांट टू टेल इज, जैसे अगर हमने इसकी जगह प्राइस लिया, ठीक है, हमने इस बार प्राइस लिया और हमने क्या किया, हमने फ्लोट किया कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू, फॉर एन एग्जांपल 66799, ठीक है, और इसको हमने लेबल कर दिया str के फॉर्म में, जो कि एक फ्लोट वैल्यू है, बट फॉर एन इंस्टेंस हमने इसे str की वैल्यू मान ली। और अगर हम इस पर टाइप चेक करें तो क्या आता है, प्रिंट टाइप, और अगर हमें चेक करना है प्राइस, ठीक है, ओके, लेट्स चेक।
तो हम पे अभी भी फ्लोट आ रही है वैल्यू, बट अगर हम लेबल चेक करते हैं उस पर क्या आ रही है वैल्यू, अगर हम लेबल चेक करें तो str आ रही है। तो इससे बात यह है कि चाहे कोई भी डेटा सेट या फिर कोई भी सेम चीज़ ही क्यों ना प्रिंट हो रही हो, अगर उसका डेटा टाइप अलग है तो चीज़ें कम्प्लीटली अलग हैं, ठीक है। और इसी से आपको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का पार्ट भी समझ में आ गया होगा। लेट्स मूविंग टू इम्प्लिसिट इन्फॉर्मेशन हमने कर लिया, एक्सप्लिसिट भी हमने कर लिया, ठीक है। एक्सप्लिसिट का एक और पार्ट है, लेट्स कमेंट दिस आउट। एक्सप्लिसिट का एक और पार्ट ये है कि जैसे हमारे पास रिज़ल्ट है या फिर टोटल है, फॉर इंस्टेंस टोटल है और हमने टोटल को ऐसे लिखा है और उसके बाद हमें str कर देना है तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर इसे रन कराते तो ये बहुत इजीली रन हो जाएगा, टोटल इक्वल्स टू 7.0। पर मेरा पॉइंट है ये कहने का, अगर मैं यहाँ पर str नहीं लिखती और डायरेक्ट ब्रैकेट में एडिशन करती ना तो प्रॉब्लम होती। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर हम डायरेक्ट करते तो शायद ऐसा हो सकता, जैसे इसको हटा कर देखते हैं कि क्या हो सकता था। क्या इसे डायरेक्टली स्ट्रिंग कंसीडर करके 5.2.0 भी लिख सकते हैं। आई टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर कि जब हम ऐसे एडिशन परफॉर्म करते हैं तो बाई चांस जो है पाइथन उसको स्ट्रिंग समझ लेता है और एडिशन होता ही नहीं है, ठीक है। सी तो इसमें एक ऐसे एरर आ रहा है, बट कई बार ऐसा होगा ना जब आप पे ये नहीं होगा, आई फील। इसको हटा के देखते हैं तो आप पे डायरेक्ट स्ट्रिंग वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर वैसे नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ समथिंग, बट देयर आर टाइम्स जब आपको वैसा आउटपुट भी मिलेगा कि 52 आ जाएगा। तो आपको इस टाइप के केसेस में टाइप कन्वर्शन करना ज़रूरी है जब आप डिफरेंट डेटा टाइप्स को साथ में यूज़ कर रहे हो। सो देयर कम्स द आइडिया ऑफ एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्शन, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट मी जस्ट कॉमेंट दिस आउट। Okay, next question, we'll talk about a few more built-in functions, जैसे ABS जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, राउंड ऑफ करना। मैक्सिमम हमने ऑलरेडी यूज़ किया है, मिनिमम हमने ऑलरेडी यूज़ किया है, सम यूज़ करके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ ABS। ABS राउंड एंड सम, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम हमने यूज़ किया है। चलो तो पहले हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, वरना एक टपल क्रिएट करते हैं, जो भी। पहले हम क्या करते हैं, -4 -6 2 7 एंड 10, ठीक है। पहले इसका टाइप चेक करते हैं, ये बेसिकली किस टाइप का है। हमने कर लिया प्रिंट टाइप टेम। कई बार लिस्ट टपल सेट्स में कन्फ्यूजन होती है, तो व्हेन यू फील कंफ्यूज्ड अबाउट इट जस्ट चेक इट। तो ये लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है कि अब हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है, हम कोई भी नंबर पे अगर एब्सोल्यूट वैल्यू दे रहे हैं ना, तो अगर वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो हमेशा आउटपुट पॉजिटिव ही आएगा। जैसे प्रिंट कर दिया हमने ABS एंड मान लो हमने -4 ले लिया, ठीक है। -4 ले लिया, रन किया, 4 आ गया आउटपुट, ठीक है। चलो ओके, अब नेक्स्ट प्रिंट राउंड यूज़ करते हैं। राउंड पे मान लो हमने कोई नंबर ही नहीं रखा है वैसा जिसमें डेसिमल हो, तो 2 पे ऐड करते हैं, मल्टीपल नंबर्स ऐड करते हैं, 4 5 6 7 8 9, बहुत सारे। अब देखते हैं क्या होता है।
अब हम उस पर ऐड करते हैं कि हमें कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। हम इसमें मेंशन नहीं करेंगे तो वो नियरेस्ट इंटीजर पे आई गेस राउंड ऑफ करेगा। एक बार करके देखते हैं क्या करता है। जैसे अगर हमने मेंशन किया 2.4567 और इसमें मैंने राउंड ऑफ डिजिट पे कुछ भी नहीं सेट किया, तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तब 2 प्रिंट हो जाता है। अगर आई फील जब 2.5 से ऊपर होगी चीज़ें तो आगे की तरफ वाला नंबर और 2.5 के नीचे से पीछे की तरफ वाला नंबर, ठीक है। तो दैट्स वाई 2। अब यहाँ पे पुट करती हूँ मैं। अब मुझे इसे राउंड ऑफ करना है, फॉर एन इंस्टेंस सिंगल डिजिट पे करना है, तो यहाँ पे कॉमा लगाया, 1 लिया, सी 2.5 पे हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिंट सम। प्रिंट सम पे बात करते हैं। सम पे हमने क्या करा, हमें क्या सम करना है वो मैटर करता है। मान लो हमें पूरे टेम्प को सम कराना है, मतलब टेम्प में जितने भी वैल्यू हैं वो खुद से सम हो जाएंगे। लेट्स सी सारे वैल्यूज़ यहाँ पे खुद से सम अप हो गए, राइट। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ सम। प्रिंट द लेंथ ऑफ टेम्प। इसमें देखते हैं कि लेंथ ऑफ टेम्प क्या है बेसिकली। चलो यहाँ पर हमने कितने वैल्यूज़ डाले, 3 4 5 वैल्यूज़ डाले, इसलिए 5 आ रही है लेंथ ऑफ टेम्प, राइट। तो दिस इज़ हाउ वी यूज़ बिल्ट इन फंक्शंस बेसिकली। तो जस्ट कीप द थिंग्स इन माइंड बिकॉज दिस विल मेक योर टास्क ईजियर। अगर आप कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे हो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। चलो लेट्स टॉक अबाउट मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी एडिशनल मैथ्स की ऑपरेशनल चीज़ें मिलती हैं, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, सील हो गया, फ्लोर हो गया, फैक्टोरियल हो गया, मैथ.पाई हो गया, मैथ.ई हो गया। तो लेट्स स्टार्ट यूजिंग इट। बिफोर यूजिंग एनी ऑफ द मॉड्यूल्स यू हैव टू इम्पोर्ट इट, ठीक है। तो पहले हम मैथ को इम्पोर्ट करेंगे। लेट्स गो। पहले हम लिख लेते हैं यूजिंग मैथ मॉड्यूल, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे इम्पोर्ट मैथ, ठीक है। इम्पोर्ट मैथ कर लिया। अब चलो हम प्रिंट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें प्रिंट करना है, मान लो हमें किसी का स्क्वायर रूट निकालना है। हमें कभी भी किसी भी चीज़ का अगर यूज़ करना होता है, हमें हमेशा अगर मैथ मॉड्यूल से हमें किसी भी चीज़ का यूज़ करना होता है तो हमें हमेशा ऐसे लिखना होता है मैथ डॉट वॉट एवर वी आर यूजिंग। जैसे अभी हम SQRT लिखेंगे, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। हमें जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा हम SQRT लिखेंगे, ठीक है। चलो अब इसमें पुट करते हैं 81, ठीक है। रन करते हैं। 9 आना चाहिए आंसर। लेट्स सी क्या आता है। डिड आई डू समथिंग रॉन्ग ओवर हियर? No, did I? No. I have to run it. I mean, why is this giving the output? It's already commented out. Let me just clear this whole thing maybe. Maybe. Okay. Still. Okay, let me just clear the whole thing once and I'll do it for you again. Okay, let it be. Let me create another file for the another thing, lecture5.py. चलो लेट्स टॉक हियर। इम्पोर्ट करते हैं पहले। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूजिंग मैथ मॉड्यूल, ठीक है। चलो उसके बाद नाउ वी हैव टू इम्पोर्ट मैथ मॉड्यूल, import math directly, then print
मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 81. गॉट इट. चलो लेट्स रन एंड सी. Okay, I feel there is some error. Let me just fix it. Let's run it. 9. चलो तो देखो 9 यहाँ पर हमारे पास आ रहा है. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ यूज़ करते हैं. नेक्स्ट चीज़ में हम यूज़ करेंगे मैथ्स डॉट सी. या मैथ्स डॉट सी प्रिंट math.seal. किसका क्या काम होता है मैंने आपको ऑलरेडी द फर्स्ट हाफ ऑफ लेक्चर में बताया हुआ है. सो आई विल जस्ट रन इट फॉर यू एंड यहाँ पर हम आउटपुट देखेंगे कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं. ओके, तो जैसे हम अगर सील यूज़ कर रहे हैं तो हम बेसिकली 4.2 अगर डालते हैं तो लेट्स सी आउटपुट क्या आता है. ओके, हाँ आउटपुट आता है 5. सील में क्या होता है, जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं ना तो हम हमेशा अबव वाली डिजिट को पकड़ते हैं. वो मैंडेटरी है. राउंड में क्या होता है, जब भी 5 जो पार्ट है 0.5 वाले से नीचे होता है तब हम लोअर पार्ट को लेते हैं और जब उससे ऊपर होता है तो हम अपर पार्ट को लेते हैं. बट सील में क्या होता है, हम हमेशा अपर पार्ट इंटीजर को ही लेंगे. चलो नेक्स्ट, अब फ्लोर यूज़ करते हैं. प्रिंट मैथ डॉट फ्लोर 4.2. सेम नंबर लिख के देखते तब आपको सील और फ्लोर में डिफरेंस समझ में आएगा. ठीक है, सी फ्लोर में हमेशा हमें 4 मिल रहा है. क्यों मिल रहा है, फ्लोर हमेशा जो डाउन वाली इंटीजर होती है उसको कंसीडर करेगा और सील हमेशा अबव इंटीजर को कंसीडर करेगा. चलो नेक्स्ट इज फाइंडिंग द फैक्टोरियल. प्रिंट कराते हैं मैथ डॉट फैक्टोरियल. किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करो. 9 का फैक्टोरियल फाइंड करते हैं. चलो ये आ गया हमारा मैथ का फैक्टोरियल. फैक्टोरियल वाला पार्ट हमने कर लिया. हाँ, एक और रह गया हमारा पाई. मैथ डॉट पाई हो सकता है डायरेक्ट. लेट्स सी, मैथ डॉट पाई पे होता है या फिर हमें ज़रूरी है राउंड ऑफ यूज़ करना. सी, अगर हम मैथ डॉट पाई यूज़ करेंगे तो बहुत लंबी वैल्यू आएगी. टू मेक इट फॉर अकॉर्डिंग टू योर यूज़ हम डायरेक्टली राउंड ऐड करेंगे. यहाँ पर ब्रैकेट्स में लेंगे और यहाँ पर मान लो हमें पाई 3.14 ही कंसीडर करना है तो हमने 2 यहाँ पर उसको राउंड ऑफ पे डाला. चलो लेट्स सी. Right, let me run it. Here you go, you got 3.14. ठीक है, so this is how it's actually processing. अब जैसे हमने ये छोटी छोटी चीज़ें पढ़ ली, अब अगर हमें इसे कोई एक फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्मूला में इम्प्लीमेंट करना है तो हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. चलो फॉर नाउ लेट्स कमेंट दिस आउट और इसका हम मैथमेटिकल फॉर्मूला देखते हैं. मैथमेटिकल फॉर्मूला में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं. फॉर एन इंस्टेंस मेरे को हमने स्फेयर और सर्कमफेरेंस निकालना सीखा था पहले क्लास में. सबको पता है स्फेयर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर. ठीक है, अगर हमें इंपोर्ट मैथ यूज़ करके उसको निकालना है. ठीक है, इंपोर्ट मैथ यूज़ करा, हमने रेडियस यूज़र इनपुट पे डाला. ठीक है, एंटर रेडियस. चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें अगर एरिया निकालना है, पाई होता है, तो हम पाई के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे मैथ डॉट पाई डायरेक्टली. ठीक है, हमें वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है. और हमें आर स्क्वायर अगर करना है तो हम मैथ डॉट पाव यूज़ करेंगे. आई डिडंट टेल यू कि पाव कैसे यूज़ करते हैं. वो ऐसे यूज़ करते हैं कि हमें जो भी आर वैल्यू चाहिए, जैसे हमने रेडियस डाला है
ठीक है, इस पर हमें जितने भी नंबर का पावर चाहिए उसको हम यहाँ पे लिखेंगे. सो द फर्स्ट थिंग यू आर पुटिंग दैट इज़ द बेस वाला पार्ट एंड द सेकेंड वन इज़ द एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट. ठीक है, ये हमने कर दिया. अब सर्कमफेरेंस भी देख लो. ठीक है, 2 multiplied by math dot pi and then multiplied by r, that's the radius. got it. अब इसको हमने प्रिंट कराना है. अगर मान लो हमने प्रिंट कराया, हमने डाला एरिया एंड एरिया और हमने यहाँ पे किया प्रिंट सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस. चलो अब हम देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आएगा और आउटपुट पे हमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत है या नहीं. जैसे हमें रेडियस एंटर करना है, हमने 7 रेडियस एंटर कर दिया, तो हमारा सर्कमफेरेंस और एरिया जो आ रहा है उसकी डेसिमल वैल्यूज़ अबव 10 आ रही है, तो हमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत है. हमने राउंड ऑफ के लिए क्या किया, हमने राउंड किया. कितने डिजिट तक चाहिए, 3 डिजिट तक चाहिए. क्लोज किया. सेम पार्ट हमने सर्कमफेरेंस पे रिपीट भी किया. सर्कमफेरेंस पे रिपीट भी किया. चलो अब हम इसे रन, इस पर हमने 3 किया सेट. चलो अब इसे रन करके देखेंगे. रेडियस इंटर किया, हमने 7 इंटर किया. सी हमें 3 वैल्यूज़ तक ही आ रहा है, एरिया और सर्कमफेरेंस. सो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली यूज़ this math module things in your creating your mathematical formulas for your function or any further coding part. अब हम डिफ़ाइन करना सीखते हैं फंक्शंस को. यहाँ तक हमने सीखा कि हमने बिल्ट इन फंक्शंस को कैसे यूज़ करना है. अब हम डिफ़ाइन करना सीखेंगे कि फंक्शंस को अगर हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसको कैसे डिफ़ाइन करना है. ठीक है, लेट्स कमेंट इट आउट. ठीक है, अब जैसे हम कोई फंक्शन बना रहे हैं, फॉर एन इंस्टेंस क्रिएटिंग योर ओन फंक्शन. जैसे हम कोई फंक्शन बना रहे हैं तो हमने डेफ किया. पहले हम कोई भी फंक्शन स्टार्ट करने से पहले डेफ करेंगे, उसके बाद हम उसे फंक्शन का नाम देंगे. तो हमने लिखा शो वेलकम. ठीक है, अब वो पैरामीटर अंदर अभी खाली है, हमने पैरामीटर नहीं डाला. फिर अभी हमें क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है. हमें प्रिंट करा देना है. एवरी टाइम वी कॉल दिस, हमें ये प्रिंट कराना है, वेलकम टू डे 4. और उसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट सेकंड एक और स्टेटमेंट करना है, स्टार्ट कोडिंग. ठीक है, अब कहीं भी थ्रू आउट दिस फाइल अगर हम शो वेलकम कॉल करते हैं तो ये 2 चीज़ें प्रिंट होगी. चलो लेट्स कॉल शो वेलकम. ठीक है, सी हम जितने बार शो वेलकम कॉल करेंगे ये चीज़ें प्रिंट होगी. वापस से शो वेलकम कॉल करके देखते हैं. शो वेलकम. सी 4 बारी प्रिंट हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. तो हमने अपना पहला फंक्शन क्रिएट कर लिया है विच वॉज़ वेरी इजी पीजी एंड आई होप कि किसी को इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी. अब हम एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स पे बेस्ड होगा और जब भी उसमें डिफरेंट नंबर्स आएंगे उस हिसाब से वो आउटपुट जनरेट करेगा. बट द फॉर्मूला एंड आइडिया बिहाइंड दैट विल बी ऑलवेज सेम. चलो अभी हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसमें पैरामीटर्स भी है और उसमें रिटर्न भी है. ठीक है, फंक्शन हमने पहले डेफ कर लिया क्योंकि हम एक फ़ंक्शन बना रहे हैं. फिर हमने स्क्वायर नाम दिया अपने फंक्शन को. ठीक है, और उसके अंदर हमने हर बार एक नंबर पुट किया. ठीक है, उसके बाद देखेंगे
अब हमें रिटर्न में क्या चाहिए? रिटर्न में हमें चाहिए, टैब पार्ट पे आएंगे. आई होप दिस नीड्स टू बी कोलन. या यस, रिटर्न n इंटू n. तो जब भी स्क्वायर को कॉल करा जाएगा वहाँ हमेशा n मल्टीप्लाइड बाई n आएगा. अगर n मल्टीप्लाइड n नहीं चाहिए, स्क्वायर का आइडिया n मल्टीप्लाइड बाई n होता है. इसको दूसरा तरीका लिखने का है n डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन 2. डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन पाइथन में होता है पावर के लिए. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम. अगर हमने ये क्रिएट कर लिया, अब हमें मल्टी चीज़ें डालनी है, तो हमने डाल दिया डेफ और हमने उसमें कर दिया सम. ठीक है, सम नाम का हमने एक फंक्शन बना लिया. उसमें हमने 2 वेरिएबल्स डाली, a और b डाल दिया हमने फॉर एन इंस्टेंस. उसके बाद हमने उस पर भी रिटर्न सेट किया. उसमें हमने रिटर्न सेट किया कि जब भी सम कॉल होगा a प्लस बी हमेशा ऐड होगा. अब चलो हम इसको प्रिंट करते हैं. प्रिंट कर लिया, हमने स्क्वायर कर लिया और हमने 11 कर लिया. और सिमिलरली हमने प्रिंट कर लिया, हमने सम कर लिया और उसमें हमने 2 नंबर कॉल कर लिए. लेट्स से 11 एंड 22. लेट्स रन इट एंड सी. चलो, तो 121 हमारे पास आ गया, द स्क्वायर ऑफ 11, और 33 आ गया हमारे पास द सम ऑफ 11 एंड 22. सो दिस इज़ हाउ ईजी फंक्शंस आर टू बी डन. एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पहले इसको कमेंट आउट कर लेते हैं. अब हम डिफ़ॉल्ट की आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे. व्हाट इज़ आर्ग्यूमेंट्स अभी हमने ये डिस्कस नहीं किया है. बट बिफोर दैट व्हाट आई वांट यू टू नो इज़ कि जैसे हम, लेट मी टेल यू, जैसे हमने कोई डेफ बनाया, हमने ग्रीट करा, उसमें हमने नेम डाला, ये इनपुट वाला पार्ट है, जो भी नेम हो, और हमने बाय डिफ़ॉल्ट पे ग्रीटिंग सेट करी हेलो. बट शायद इसके अलावा भी कोई ग्रीटिंग हो सकती है. ठीक है, इसके अलावा ग्रीटिंग हो सकती है. तो हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट f. दिस इज़ द अनदर वे ऑफ प्रिंटिंग इन पाइथन. तो किसी भी वे से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ग्रीटिंग एंड देन द नेम, या देन द नेम. अब चलो, अब भी हमें 2 ऑप्शंस आएंगे जब हम रन करेंगे. इस बात को समझना. Just a moment. यस, इसमें हमने इनपुट वाला पार्ट यहाँ पे नहीं दिया. हमने ग्रीट करा, हमने कॉल नहीं करा था फंक्शन को. हमने ग्रीट कॉल कर लिया और उसके बाद हमने उसमें प्रिया डाल दिया. फॉर एन एग्जाम्पल प्रिया डाल दिया. उसके बाद हमने रन कर दिया, तो हेलो प्रिया आ रहा है. ठीक है, पर फॉर एन इंस्टेंस मैंने ग्रीट को कॉल किया और उसमें मैंने डाला शगुन. ठीक है, और मैंने डाला उसमें व्हाट्सएप. ठीक है, तो चलो देखते हैं आउटपुट क्या आता है. दिस नीड्स टू बी इन दिस वे आई फील. या ठीक है, चलो इसको रन कराते हैं. तो हमें व्हाट्सअप शगुन आ रहा है. तो व्हाट्स द पार्ट इज़ कि अगर हम इसमें प्रोवाइड ना करें तो हम हेलो भी ले सकते हैं. बट हम पे एक की आर्ग्यूमेंट चार्ज है कि हम डाल भी सकते हैं अपने हिसाब से कोई ग्रीटिंग इफ़ आई वांट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट. ARGC वगैरह हम आगे पढ़ेंगे जाके फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. बट लेट्स कीप द थिंग सिंपल ओवर हियर. अब इसको कमेंट आउट करो. एंड आई वॉन्ट यू टू नो अबाउट लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स. मैंने आपको लोकल और ग्लोबल वेरिएबल समझाया था. अगर हम कोई भी ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, तो वो थ्रू आउट ब्लॉक ऑफ कोड उसी तरीके से यूज़ होता है. ठीक है, एंड इट इज़ ऑलवेज अबव द फंक्शन. बट जो लोकल वेरिएबल होता है, इट इज़ इनसाइड द फंक्शन एंड इट इज़ ओनली यूज्ड इन द फंक्शन.
गॉट इट. चलो लेट मी जस्ट कोड इट फॉर यू. जैसे हमने काउंट 0 सेट करा है, उसके बाद हमने इंक्रीमेंट सेट करा है. डेफ इंक्रीमेंट नाम का हमने एक फंक्शन बना लिया है जिसमें हमने कोई वैल्यू नहीं डाली है. इसमें क्या है, ग्लोबल काउंट है, ठीक है. और जब भी आगे बढ़ेगा काउंट हमेशा प्लस इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है. उसके बाद देखो अभी हमने इसको ग्लोबल पे सेट करके देखा, ठीक है. अभी हमें इसे देखना है लोकल पे सेट करके. अगर हमने इसे शो लोकल पे सेट करा और हमने इसको ऐसे लिया कुछ कि अगर हमें मैसेज करना है, मैसेज हियर इज़ द लोकल वेरिएबल नेक्स्ट टाइम, ठीक है. तो हम इसमें करेंगे प्रिंट मैसेज, ठीक है. अब हम इसमें ये करते हैं कि हम इसमें इंक्रीमेंट को कॉल करते हैं, शो लोकल को भी कॉल करते हैं, और उसके बाद हम काउंट को प्रिंट भी कराते हैं. तो उसके बाद देखते हैं कि आउटपुट आ क्या रहा है. हमें एक बार नेक्स्ट टाइम मिल जा रहा है और उसके बाद हमें काउंट 1 मिल जा रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना तो हमारा काउंट अभी 0 पे है, तो इसीलिए काउंट हम पे 1 आ रहा है, ठीक है. और जब हम शो लोकल पे आ रहे हैं ना, और हम एक्चुअली शो लोकल को कॉल कर रहे हैं, इंक्रीमेंट को हम कॉल कर रहे हैं, तो हम पे +1 दिख रहा है. और शो लोकल इंक्रीमेंट को जब हम कॉल कर रहे हैं ना तो वहाँ पर प्रिंट की वैल्यू नहीं है, तो वो बस कॉल हो रहा है, प्रिंट कुछ नहीं हो रहा, बस वो अपने आप में स्टोर कर रहा है वैल्यू को, ठीक है. तो वहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ. शो लोकल पे हमें डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम प्रिंट होना ही है क्योंकि उसमें प्रिंट मैसेज की स्टेटमेंट है. तो हम पे नेक्स्ट टाइम प्रिंट हुआ. और जब हमने प्रिंट काउंट किया ना तो हम पे 1 प्रिंट हुआ. अगर हम प्रिंट काउंट हटा के देखें तो हमें ग्लोबल वेरिएबल से कोई भी आउटपुट नहीं आएगा. सी, नेक्स्ट टाइम प्रिंट हुआ बस क्योंकि हमने शो लोकल कॉल किया था. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कोडिंग क्वेश्चंस फॉर द डे. लेट्स मूव टू आवर पीपीटी. चलो, तो वी आर डन विथ ऑल द कोडिंग क्वेश्चंस. अब देखो आपको कौन कौन से कोडिंग क्वेश्चन करने हैं. गिवन ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, यूज बिल्ट इन फंक्शंस. ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया, आपको खुद से करना है. सिमिलरली 10 क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं विद सॉल्यूशंस सो दैट यू कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स. तो उसको आप जैसे ही फटाफट से कंप्लीट करो और डे 5 के लिए रेडी हो जाओ, जिसमें हम कवर करने वाले हैं पाइथन लिस्ट, क्रिएटिंग, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, अपेंड, रिमूव, सॉर्ट, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं. एंड दैट वाज ऑल अबाउट द डे. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड या डू टेल मी द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है. बाय बाय.